Hello student, in this video we are going to discuss Maharashtra State Board Physics Practical, and our experiment is to compare the EMF of two given cells using potentiometer. Right? Our first cell is Leclanche cell, our second cell is Daniell cell. So two cells, first Leclanche is E1 cell, second is E2 cells. हम देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम है हमारे पास with main battery supply, key and a rheostat which is connected with the potentiometer having wire 400 centimeter. This is the starting end. A connected with the positive terminal, negative terminal of the battery is connected with rheostat and the other end of the wire. राइट अब हम देखते हैं कि A पॉइंट को फिर हमने टू सेल से कनेक्ट किया है. फर्स्ट वन इज E1 दैट इज Leclanche एंड E2 Daniell cell. Right? The positive terminal of both these two cells is connected with the terminal A. Negative is connected with the keys, and after that keys, the negative terminal is connected with the one end of the galvanometer. Galvanometer का second end हमने connect किया है with the jockey. Right? And the use of jockey is to find out the balance point. And what is balance point? When galvanometer gives zero deflection, no deflection, we can say that is our balance point. Right? Now compare कैसे करेंगे दो cells को? We have formula E1 by E2 ratio, that means comparison, which is equal to L1 by L2. बात करते हैं कि L1 and L2 क्या है. L1 is the balancing length. कब? When E1 is connected. सिर्फ E1 connected है. E1 on होगा तो E2 को की से हम ऑफ रखेंगे. L2 क्या है? Balancing length when E2 is connected in the circuit. Means इस बार this time हम क्या करेंगे? E1 को ऑफ करेंगे and E2 is on. Right? This is, you can see over here, observation table. Observation number 1, 2, 3, 4 readings हम लेंगे. Balancing length when E1 is connected. तो यहाँ पे L1 की वैल्यूज हम पुट करेंगे, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे वहां से आएगी. सिमिलरली L2 एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे E1 बाई E2. क्वेश्चन इज दिस कि L1 E1 तो वेरिएबल क्या होगा? दैट्स व्हाई वी गेट 4 वैल्यूज. तो हम रियोस्टेट से 4 डिफरेंट पोजीशन सेट करेंगे और उन 4 पोजीशन पे हम L1 और L2 नोट डाउन करेंगे. चलिए इससे आगे हम पहुंचते हैं अपने सेटअप की तरफ और देखते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करना है. स्टूडेंट्स, दिस इज अवर सेटअप पोटेंशियोमीटर. This is main battery supply. This is rheostat, and we have two cells. This is our Leclanche cell, that is E1, and this one is our Daniell cell, E2. There is a 4-way key used as 3-way, then galvanometer, and this is our jockey. तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम हमने कनेक्शंस कैसे किया है. मैंने कहा था 2 पॉइंट्स हैं, A पॉइंट एंड B पॉइंट, स्टार्टिंग ऑफ द वायर और एंड पॉइंट ऑफ द वायर. तो आप यहां देख सकते हैं यहां से वायर स्टार्ट हो रही है एंड पूरा 100 सेंटीमीटर, देन कॉपर स्ट्रिप से टर्न बैक 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर and 400 centimeter over here. This point, let's suppose this is A point. A point is connected with the positive terminal of the battery. Then negative of the battery is connected with the one end of the rheostat. Other end, these two ends, similar ends are, these are similar ends, and the one, any one of these two ends is connected with the other end of the wire. ठीक है? इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट हम यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम पॉइंट हैं. उसके बाद दिस इज अवर प्राइमरी सर्किट. बैटरी को हमने सेट किया है 4 वोल्ट पे. आप देख सकते हैं 2 वोल्ट 4 वोल्ट एंड 4 वोल्ट इज ग्रेटर देन द EMF of both of these two cells. EMF of this cell is 1.4 and this cell is 1.1. हमने कहा हमने मेन बैटरी सप्लाई का पोटेंशियल 4 वोल्ट चूज किया है. EMF E1 Leclanche cell 1.4 वोल्ट हमने लिया है एंड E2 हमने लिया है 1.1 वोल्ट. यू कैन सी ओवर हियर हमने नोट डाउन कर लिया है. अभी हम आते हैं अगेन कि सेल्स को हमें कैसे सर्किट में कनेक्ट करना है. तो मैंने कहा सेल का दिस इज अवर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस रोड इज अवर नेगेटिव टर्मिनल. सेम फॉर दिस बॉडी, दिस इज अवर पॉजिटिव
and this is our negative terminal. So positive of the both of the cell is connected with the same point where positive terminal of the battery is connected, starting point, right? The negative of the both of the cell is diagonally connected, diagonally opposite, आप देख सकते हैं, with the थ्री वे की एंड द थ्री वे की का जो थर्ड एंड है उसको हमने कनेक्ट किया है विद द गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का अदर एंड हमने कनेक्ट किया है जोकी के साथ, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे अवर नल पॉइंट. नल पॉइंट कौन सा होगा? व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव जीरो डिफ्लेक्शन आफ्टर टचिंग द जोकी ऑन द वायर. ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं जोकी को कनेक्ट करना है, सॉरी E1 को कनेक्ट करना है हमें सर्किट में सबसे पहले. तो उससे पहले हमने, हमारे पास ये की है और हमने E1 सेल, आप देख सकते हैं E1 सेल को हमें कनेक्ट करना है तो थ्रू दिस वायर. तो मैंने यहाँ पे की ऑन कर दिया. अब सर्किट में E1 सेल कनेक्ट है बट E2 सेल डिस्कनेक्ट है. आप देख सकते हैं E2 सेल इज नॉट कनेक्टेड इन द वायर, राइट? सर्किट में सिर्फ E1 सेल कनेक्ट है. क्लियर है? अभी हमने किया बैटरी को ऑन. अब देखेंगे हमने यहाँ पे बैटरी को ऑन किया है. अब हम देखते हैं हमारा कनेक्शन ठीक है या नहीं है. कनेक्शन को वेरीफाई करने के लिए हमने स्टार्टिंग एंड पे जोकी को टच किया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया लेफ्ट साइड में. ठीक है, आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड, जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर टच कर रहा हूं यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड, और दूसरे एंड पे जब मैं टच कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में है. लेकिन ये डिफ्लेक्शन लेफ्ट राइट में कब होगी? जब जो रियोस्टेट है हमारा वो एक फिक्स पोजीशन पे होगा. अगर मैं रियोस्टेट की पोजीशन ये कर देता हूं तो अभी देखते हैं दोबारा से, दिस इज लेफ्ट एंड दिस एंड इज ऑल्सो लेफ्ट, मीन्स दिस इज रोंग बिकॉज नल पॉइंट हमारा 400 सेंटीमीटर वायर पे नहीं है. इसलिए हमें रियोस्टेट की एक फिक्स पोजीशन को सेट कर देना है. मैंने इस एंड पे किया तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन एंड राइट साइड डिफ्लेक्शन. बट मैं आपको बता चुका हूं कि हमें 4 रीडिंग्स लेना है L1 का और 4 रीडिंग्स लेना है L2 का. तो 4 रीडिंग्स हम लेंगे डिफरेंट पोजीशन ऑफ रियोस्टेट. तो रियोस्टेट की हमें एक रेंज चाहिए जहां पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट और राइट साइड मिलेगी, राइट है? चलो वो रेंज सेट करते हैं. यहां देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इस पे टच किया तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन है, अदर एंड पे टच किया तो राइट साइड डिफ्लेक्शन है. तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू टच रखता हूं और रियोस्टेट की पोजीशन को धीरे धीरे मैं इंक्रीज करता हूं, राइट? और आप गैल्वेनोमीटर को साथ के साथ देखते रहिए. मैं इंक्रीज कर रहा हूं और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देखिए डिक्रीज हो रही है और ये देखिए लेफ्ट साइड में पहुंच गई, राइट? अब मुझे इसको राइट में ही रखना है तो मैंने इसको और डिक्रीज किया और दोबारा से इसको राइट में ही सेट कर दिया, राइट? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे A पॉइंट लेफ्ट साइड, B पॉइंट राइट साइड डिफ्लेक्शन में नल पॉइंट 400 सेंटीमीटर वायर के ऊपर ही होगा. तो ये जो रेंज है रियोस्टेट की, इस रेंज में हमारा नल पॉइंट 400 सेंटीमीटर वायर पे है. और इस रेंज से मैं अगर दूर लेके जाता हूं, इस रेंज की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे नल पॉइंट हमारा वायर पे नहीं होगा. तो हमें सिर्फ इस रेंज से मतलब है, राइट? चलिए फर्स्ट रीडिंग के लिए अब हमने फाइंड आउट करना था नल पॉइंट. मैं पहली पोजीशन रियोस्टेट की यही ले लेता हूं कि दिस इज द आवर फर्स्ट पोजीशन फॉर रियोस्टेट. इस फर्स्ट पोजीशन के लिए हम L1 की वैल्यू देखते हैं. L1 के लिए हमें नल पॉइंट देखना है जहां डिफ्लेक्शन 0 हो. तो मैं 100 लेफ्ट मैं एंड पे जाता हूं 100 सेंटीमीटर पे, दिस इज ऑल्सो लेफ्ट. फिर मैं यहां आता हूं, फिर मैं यहां 150 अराउंड आता हूं, दिस इज ऑल्सो लेफ्ट 200 सेंटीमीटर पे भी लेफ्ट, फिर 225 लेफ्ट एंड देन थर्ड वायर पे पहुंचे हुए हैं हम. आप देख सकते हो स्टिल लेफ्ट डिफ्लेक्शन है और 300 सेंटीमीटर पे भी लेफ्ट है एंड 300 से प्लस अगर मैं मूव कर रहा हूं तो लेफ्ट और हमारे पास देखिए यहाँ पे राइट हो गई, यानी कि इससे पहले कहीं नल पॉइंट होगा. और आप देखेंगे कि नल पॉइंट थोड़ा यहां कहीं है. ओके, दिस इज अवर नल पॉइंट और मैं इस पॉइंट को मार्कर से मार्क कर लेता हूं एक बार के लिए. दिस इज अवर नल पॉइंट, ठीक है? और आप देखेंगे कि हमारा जो नल पॉइंट है वो अराउंड 29 या 71 कोई हो सकता है. तो कौन सा होगा? स्टार्ट हमें यहां से करना है 0 से 100 सेंटीमीटर, फिर 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 से 201 होते हुए 300 सेंटीमीटर. अब हमें यहां से शुरू करना है, यानी 0 से हमें काउंट करना है. 0 से आप आएंगे 29, तो 329 सेंटीमीटर इज अवर L1. तो मैं यहां लिख लेता हूं E1 जब कनेक्ट था तो L1 की वैल्यू आई हमारे पास 329
9 सेंटीमीटर, 329 सेंटीमीटर। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते हैं फॉर सेल E2 सेल के लिए मैं यहां पे की रिमूव करके यहां पे की प्लेस कर देता हूं। चलिए, राइट, E2 जैसे हमने सर्किट में कनेक्ट किया, E1 को डिस्कनेक्ट कर दिया, डैनियल सेल को हमने कनेक्ट किया। सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। हमारे पास जॉकी है, गैल्वेनोमीटर है, सेम रियोस्टेट की पोजीशन पे, मैं रियोस्टेट की पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम पोजीशन पे L1 हमने टच किया लेफ्ट साइड, B पॉइंट पे टच किया तो राइट साइड। फिर से मैं देखता हूं, डिक्रीज होते हुए जा रहा हूं। इस बार मैं 400 से शुरू कर रहा हूं, डिक्रीज होते हुए जा रहा हूं, क्योंकि हाइयर रेजिस्टेंस पे हमारी हाइयर वैल्यूज अराउंड हमारे पास आएगी। तो देखिए अभी भी राइट साइड में ही है डिफ्लेक्शन, अभी भी राइट साइड में ही है डिफ्लेक्शन, और देखिए डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हुआ है। मैं और आगे मूव करता हूं, मुझे 0 तक पहुंचना है, और दिस इज आवर 0 डिफ्लेक्शन। इस पॉइंट को मैं फिर से मार्क आउट कर लेता हूं L2 की रीडिंग के लिए, ये पॉइंट। और L2 की रीडिंग आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास हो सकती है 42 या 58 हो सकती है। तो कौन सा काउंट करेंगे हम? A पॉइंट से हमें जाना है वही 100, 200, देन हमें यहां से शुरू करना है भाई। 200 यहां हुआ तो यहां से शुरू करेंगे 201, यानी कि ये वाला पार्ट 0 से होते हुए हम इस तरफ आएंगे तो 42, 242 अराउंड हमारे पास रीडिंग होगी। तो मैंने यहां लिखा 242, ठीक है। मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ले रहा हूं हल्का सा, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। स्केल का यूज आप यहां पे कर सकते हैं, और एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होगा डेसिमल प्लेसेस में कैसे होगा, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट वैल्यू फॉर इस पोजीशन पे रियोस्टेट की फर्स्ट वैल्यू। रियोस्टेट की दिस पोजीशन पे हमने L1 भी नोट डाउन किया है, इस पोजीशन ऑफ रियोस्टेट पे L1 भी नोट किया है, L2 भी फाइंड आउट किया है, ठीक है। अभी हम करेंगे इसकी सेकंड पोजीशन सेट। इसको मैंने कहा इससे ज्यादा लूंगा तो डिफ्लेक्शन नल पॉइंट मिलेगा नहीं, तो इससे डिक्रीज किया मैंने, मान लो यहां सेट कर दिया इसकी। दिस इज सेकंड पोजीशन, ठीक है। सेकंड पोजीशन फॉर रियोस्टेट, फिर से मैंने बैटरी को स्विच ऑन किया, बीच में मैंने ऑफ कर दिया था जैसे ही मैंने रीडिंग लिया। उसके बाद मैंने की को फिर से E1 के साथ कनेक्ट किया है। दिस इज E1 मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम प्रोसीजर, सेम डिफ्लेक्शन, L1 L2, लेफ्ट राइट डिफ्लेक्शन आ रहा है, हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं पहले की तरह, तो मैंने 400 से डिक्रीज करना शुरू किया, राइट, यहां पे देखिए 0 से थोड़ा सा आगे है, तो मैं थोड़ा सा और डिक्रीज करता हूं, और ये हमारा नल पॉइंट हमारा, आप देख सकते हैं कि नल पॉइंट हमारा कहीं इस पॉइंट पे हमारा नल पॉइंट मिल रहा है। और मैं यहां मार्कर से फिर से कहां था नल पॉइंट, ये नल पॉइंट है, मैं मार्कर से मार्क आउट कर लेता हूं इस पॉइंट को। ये L1 है हमारा सेकंड पोजीशन ऑफ रियोस्टेट, और दिस इज नियर अबाउट 10.5, आप देख सकते हैं 10.5। लेकिन क्या ये 10.5 है या 90.5 है, फिर से हम देखेंगे। ए पॉइंट से हमें शुरू करना है, याद रखिएगा ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। ए पोजीशन से 0 से होते हुए हम यहां पहुंचेंगे 100, फिर यहां 101 होते हुए फिर पहुंचेंगे 200 से हम थर्ड वायर पे इस तरफ से पहुंचेंगे, यानी कि 0 हमें यहां से शुरू करना है, 0 वाला स्केल लेना है हमें। 300 से होते हुए हम यहां पहुंचेंगे, दिस इज यानी कि 389.5। तो दिस इज अवर L1 इस बार हुआ 389.5 सेंटीमीटर। सिमिलर प्रोसीजर हम L2 के लिए करेंगे, आइए देखते हैं। L2 के लिए हमने की को E2 के साथ कनेक्ट कर दिया है सर्किट में। फिर से सेम पोजीशन है, रियोस्टेट की पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हैं रियोस्टेट की वही पोजीशन है जो सेकंड हमने सेट किया था। डिफ्लेक्शन देखते हैं, ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड, बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन राइट साइड, कनेक्शन इज ओके। मैं फिर से डिक्रीज करता हुआ जा रहा हूं, मैं यहां आया डायरेक्टली थोड़ा फास्ट करने के लिए, और यहां पे राइट साइड में ही है डिफ्लेक्शन, यहां भी राइट में है, मैं और फास्ट आता हूं। अभी तक डिफ्लेक्शन देखिए राइट में ही चल रही है, मैं यहां आया, देखिए डिफ्लेक्शन राइट से थोड़ा कम हुआ है, फर्दर और कम हुआ, और आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन 0 हमारे पास यहां मिली है। दिस इज अवर 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट। मैंने मार्क कर लिया इस पॉइंट को। L2 की पोजीशन कितना हुआ, आप यहां देख सकते हैं 92 हो सकता है, 8 हो सकता है, कौन सा होगा? यहां से शुरू करेंगे 100, वापस यहां आएंगे 200, फिर यहां से शुरू करेंगे 0 से 200 से 208 सेंटीमीटर। तो आइए मैं यहां पे फिर से लिख लेता हूं 208 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आई। सिमिलरली हमें फिर से वही प्रोसीजर करना है,
हमें पहले E1 को कनेक्ट करना है, उसके बाद रियोस्टेट की हमें थर्ड पोजीशन सेट करनी है। थर्ड पोजीशन मैंने और ज्यादा कम कर दिया इसको, ये हमारी थर्ड पोजीशन है रियोस्टेट की। बैटरी को मैंने बार बार मैं ऑफ कर दे रहा हूं क्योंकि बैटरी को कंटिन्यू ऑन नहीं रखते, हमने फिर से बैटरी को ऑन कर दिया है। और फिर से हमने E1 सेल कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कनेक्शन हमारे ठीक है कि नहीं। कि मैंने ए पॉइंट पे टच किया, डिफ्लेक्शन लेफ्ट में है, बी पॉइंट पे टच किया, डिफ्लेक्शन राइट में है। दैट मीन्स फिर से हम कंटिन्यूअसली देखते हैं। मैं डायरेक्ट 100 सेंटीमीटर बाद आता हूं, स्टिल इन राइट पोजीशन, स्टिल राइट पोजीशन। फिर यहां से डिक्रीज करते करते राइट पोजीशन पे ही है, एंड आगे हम डिक्रीज करते रहेंगे और यहां तक भी राइट पोजीशन पे है। अब यहां से फर्दर मैं सेकंड रो पे आया हूं, सेकंड रो से और फर्दर डिक्रीज करेंगे तो देखिए नल पॉइंट हमारा पास ही है और दिस इज अवर नल पॉइंट। L1 की वैल्यू है ये, हाँ ये वैल्यू है हमारे पास। मैंने फिर से इस वैल्यू को मार्क आउट कर लिया, ठीक है। और ये वैल्यू मैं फिर से कह रहा हूं, हम यहां से देखेंगे दिस इज 77 हो सकता है या 23 हो सकता है, तो दिस इज 100 सेंटीमीटर। और इस बार हम देखिए सेकंड वायर यहां 100 हुआ तो यहां 0 से काउंट करेंगे, 0। तो 0 वाला स्केल जब हम यहां पे जाएंगे सेकंड वायर पे तो दिस इज अवर 77, यानी कि 177, 100 प्लस 77, तो यहां देखिए 177 सेंटीमीटर हमने मार्क आउट किया, राइट। अगेन सेम प्रोसीजर, हमने सेल कनेक्ट कर दिया, सेकंड सेल E2 सेल। E2 सेल के लिए फिर से हम वही सेम पोजीशन ऑफ रियोस्टेट, थर्ड पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं। डिफ्लेक्शन देखते हैं लेफ्ट साइड, डिफ्लेक्शन देखेंगे बी पॉइंट पे राइट साइड। फर्दर मैं डिक्रीज करता हुआ जाता हूं, यहां भी राइट है, हमें लेफ्ट में लेके आना है इसको, लेकिन स्टिल इन राइट। और मैं 300 पे टच किया तो भी ये राइट में ही है। 300 से फिर मैं डिक्रीज करता हुआ आया 200 से होते हुए, और ये अभी तक राइट में ही चल रहा है। देखिए मैं सेकंड वायर पे पहुंच चुका हूं राइट में। देखिए अब राइट थोड़ा कम है और कम है, हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज अवर नल पॉइंट। यहाँ पे फिर से मैं वही करता हूं, हमारा जो नल पॉइंट आ रहा है इसको फिर से हमने यहाँ पे एक मार्कर से नोट डाउन कर दिया। दिस इज अवर पोजीशन फॉर L2। आप देख सकते हैं L2 हमारा क्या है, अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो हमारा L2 25 या 75 हो सकता है, लेकिन हमें पता है फर्स्ट वायर यहां पे आती है हमारे पास। फर्स्ट वायर जैसे मैं आऊंगा यहां 100 सेंटीमीटर, तो यहां से शुरू होगा इस बार 0 से, तो 0 से अपर स्केल की हम बात करेंगे, एंड दिस इज 25.5 अराउंड हमारे पास है। तो 125.5 हमारी डिफ्लेक्शन है, तो 125.5 सेंटीमीटर। अगेन लास्ट रीडिंग सिमिलर, अब हम सेट करेंगे फोर्थ पोजीशन ऑफ रियोस्टेट पे। रियोस्टेट की फोर्थ पोजीशन बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया मैंने इसको, बिल्कुल हमें 4 पोजीशन ही लेनी थी इसलिए मैंने बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया है, राइट। लेक्लांचे सेल को मैंने सर्किट में कनेक्ट किया, E1 सेल को फिर से L1 फाइंड आउट करने के लिए, और बैटरी को हमने अगेन स्विच ऑन किया है। चलिए फिर से हम देख लेते हैं, हमारे पास डिफ्लेक्शन का सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है भाई। ए पॉइंट पे टच करेंगे लेफ्ट साइड, बी पॉइंट पे टच करेंगे राइट साइड। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सीधा मैं यहाँ पे आ रहा हूं, अब मुझे पता है इससे आगे ही पॉइंट मिलेगा। तो देखिए अभी भी राइट में डिफ्लेक्शन है, यहाँ भी राइट में डिफ्लेक्शन है, मैं और डिक्रीज करूंगा, राइट में डिफ्लेक्शन है, और यहाँ देखिए लेफ्ट में हो गया डिफ्लेक्शन, तो मैं वापिस आता हूं और ये हमारा L1 का ये डिफ्लेक्शन हमारे पास देखिए आप देख सकते हैं 0। तो इस डिफ्लेक्शन को मैं फिर से मार्क आउट कर लेता हूं यहाँ पे, and this is nothing but it may be 35 और 65 अराउंड, राइट। तो कौन सा होगा वैल्यू 100 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो 0 से आते हुए 35, यानी कि 135 L1 है। तो यहाँ में L1 की वैल्यू फोर्थ हमारी जो रीडिंग है दैट इज 135, राइट। इसके बाद आइए देखिए, हमने सेम पोजीशन ऑफ रियोस्टेट मिनिमम पोजीशन जो है उस पे E2 को हमें कनेक्ट करना है। अभी मैंने E2 को कनेक्ट किया की से E2, E1 को डिस्कनेक्ट कर दिया है। सेम प्रोसीजर हम करेंगे, ए पॉइंट पे टच किया डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड, बी पॉइंट पे टच किया डिफ्लेक्शन राइट साइड। इस डिफ्लेक्शन से मैं डिक्रीज करता हुआ जाऊंगा, और देखिए अभी भी राइट में ही है, फिर यहां आया यहां भी राइट पे ही है, दिस इज अगेन राइट। मैं इंक्रीज करता हुआ जा रहा हूं और आपको दिखाता हुआ जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पे मैं आया, और ये अभी भी 0 नहीं है, उससे थोड़ा सा और कम किया मैंने, और यहां इसका डिफ्लेक्शन कितना है 0। दिस पॉइंट यानी कि 1 पे है, आप देख सकते हैं दिस पॉइंट इज अवर दिस इज 1 मींस यहां तक हमारा 100 हुआ था, तो ये 99 है, 1 नहीं है,
क्योंकि हमारा शुरू कहां से करना है, देखिए शुरू यहां से करना है इस पोजीशन से, दिस इज 0, तो हम ये लोअर वाला स्केल यूज करेंगे 0 1 2 3, और यहां से आते होते फर्स्ट लाइन में दिस इज 99 सेंटीमीटर, तो 99 हम मार्क करेंगे यहां पे, दिस इज आवर 99 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है E1 by E2 की रेशियो, दिस इज नियरली 1.2 से 1.3 हो सकता है अराउंड, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन करने के बाद आइए देखते हैं क्या हुआ। कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे 329 को 242 से डिवाइड किया, दिस अगेन दिस इज नॉट 389, दिस इज 289। अगर आपने देखा हो ध्यान से, दिस इज 289.5, 208 इसको डिवाइड करेंगे 1.39, 177 को 125.5 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और इन सब वैल्यूज का हमने मीन लिया एंड दैट मीन वैल्यू इज 1.369। दिस इज आवर कंपैरिजन की E1 by E2 की जो रेशियो है दैट इज 1.369। दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट, कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, हमने सिर्फ इंडिविजुअल सेल मेथड की बात किया है, और इंडिविजुअल सेल मेथड में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि की से हमें सिंगल टाइम, एक टाइम पे हमें सिंगल सेल कनेक्ट करना है, E1 तो E2 डिस्कनेक्ट, और E2 जब कनेक्ट होगा तो E1 डिस्कनेक्ट, इतना सा है। और दिस इज अवर एक्सपेरिमेंट यूजिंग पोटेंशियोमीटर। थैंक यू, टेक केयर।